રાજ્યમાં ઓમિક્રોનના કેસીસ વધી રહ્યા છે, તેને કારણે ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે। ગુજરાતમાં ગુરુવારે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ઓમિક્રોનના 7 નવા કેસ નોંધાયા હતા। આ નવા 7 કેસને લીધે ગુજરાતમાં કુલ ઓમિક્રોન પોઝિટિવ દર્દીઓની સંખ્યા 30 પર પહોંચી ગઈ છે, જેમાંથી 25 દર્દીઓ હાલ સારવાર હેઠળ છે, જ્યારે 5ને ડિસ્ચાર્જ કરી દેવામાં આવે છે। જિલ્લાવાર વાત કરીએ તો જામનગર મહાનગરપાલિકામાં 3ને ઓમિક્રોન પોઝિટિવ આવ્યા હતા અને 3ને સાજા થતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરી દેવામાં આવે છે, જ્યારે સુરત અને ગાંધીનગરમાં પણ એક દર્દીઓ જે પોઝિટિવ હતા તેમને સારવાર બાદ સાજા થતાં તેમને ડિસ્ચાર્જ કરી દેવામાં આવ્યા છે। દેશમાં ફરી એકવાર કોરોના સંક્રમિતોની સંખ્યા વધી રહી છે। દરમિયાન વાયરસનું નવું સ્વરૂપ ઓમિક્રોન ચિંતામાં વધારો કરી રહ્યું છે। ગુરુવારે 7 રાજ્યોમાં ઓમિક્રોનના 96 નવા કેસ નોંધાયા હતા, જેમાંથી 33 દર્દીઓ એકલા તમિલનાડુમાં અને 23 મહારાષ્ટ્રમાં જોવા મળ્યા હતા। આ સિવાય તેલંગાણામાં 14, કર્ણાટકમાં 12, ગુજરાતમાં 7, કેરળમાં 5 અને ઓડિશામાં 2 કેસ નોંધાયા હતા। હવે સમગ્ર દેશમાં નવા વેરિયન્ટથી સંક્રમિત દર્દીઓની સંખ્યા 362 ઉપર પહોંચી ગઈ છે અને જે રીતે ઓમિક્રોનના કેસીસ વધી રહ્યા છે, મહારાષ્ટ્રમાં ઓમિક્રોનના સૌથી વધુ 88 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે દિલ્હીમાં 64 ઉપર આંકડો પહોંચ્યો છે, તે બીજા ક્રમે છે અને તેલંગાણા 38 કેસ સાથે ત્રીજા ક્રમે છે। અહીં ઓડિશામાં 2 બાળકોના ઓમિક્રોન પોઝિટિવ આવ્યો હતો। બંને તાજેતરમાં જ નાઇજીરિયાથી પરત ફર્યા છે। તેમની ઉંમર 11 અને 15 વર્ષની છે। તેમનું કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે। તમિલનાડુના આરોગ્ય મંત્રી એમ સુબ્રમણ્યમે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે નવા ઓમિક્રોન દર્દીઓમાંથી 26 ચેન્નઈમાં, 1 સાલેમમાં, 4 મદુરાઈમાં અને 2 તિરુવન્નામલઈમાં મળી આવ્યા છે। સંક્રમિતોના સંપર્કમાં આવેલા લોકોને શોધી કાઢવામાં આવી રહ્યા છે। કેટલાક લોકોના જીનોમ સિક્વન્સિંગના પરિણામો આવવાના બાકી છે। પરિણામ આવ્યા બાદ સંખ્યા વધી શકે છે। કોરોનાથી સૌથી વધુ ચિંતાજનક સ્થિતિ મહારાષ્ટ્રમાં જોવા મળી છે। રાજ્યમાં 35 દિવસ પછી 24 કલાકમાં 1000થી વધુ સંક્રમિત મળી આવ્યા છે। ગુરુવારે મહારાષ્ટ્રમાં 1201 કેસ નોંધાયા હતા। અગાઉ 17 નવેમ્બરે રાજ્યમાં 1003 કેસ સામે આવ્યા છે। તે જ સમયે મુંબઈમાં 68 દિવસ પછી કોરોનાના 480 નવા કેસ નોંધાયા છે। મહારાષ્ટ્રમાં હાલમાં 7093 સક્રિય કેસ છે। પશ્ચિમ બંગાળની એક શાળામાં ગુરુવારે 29 બાળકોનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો। શાળાના બાકીના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને પણ કોરોના તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। તો દેશમાં જે રીતે કોરોનાના કેસીસ વધી રહ્યા છે, દિલ્હીમાં પણ કેસ વધી રહ્યા છે અને 362 ઉપર પહોંચ્યો છે, ત્યારે અમારા દિલ્હીના संवाददाता राहुल गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ाई गया है आ मामले। जी राहुल, जिस तरह से देश में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और 362 तक की तादाद पहुंच गई है, क्या ज़्यादा जानकारी है? देखिए, सही कहा आपने। और सिर्फ 2 दिन पहले ये आंकड़ा 213 पर था और आज तकरीबन 360। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो फैल रहा है। तमाम स्टडीज बताती हैं कि डेल्टा वेरिएंट, जिसने सेकंड कोविड वेव के समय कहर बरपाया था, उससे 3 गुना ज़्यादा ये ट्रांसमिसिबल है। और अभी थोड़ी देर पहले WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक एडवाइजरी जारी की है, प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यूके और साउथ अफ्रीका, जहां पर सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है ओमिक्रॉन का, वहां पर अब अस्पतालों में जो हॉस्पिटलाइजेशन है या अस्पतालों में जो भर्तियों के मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत के अंदर अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरा टीका नहीं लगवाया या पहला टीका नहीं लगवाया है। और क्योंकि भारत में आपने देखा होगा कि दूसरी कोविड वेव के दौरान किस तरीके से जो हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया था। तो उन सब हालातों को देखते हुए भारत एक ऐसी स्थिति में है या ऐसी सूची में है जहां पर ओमिक्रॉन एक बड़ी तबाही ला सकता है, एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए लोगों से बार बार अपील करी जा रही है कि अगर उन्होंने टीका नहीं लगवाया है तो वो टीका लगवाएं। अगर वो भीड़ भाड़ में जाते हैं कहीं पर तो मास्क हमेशा पहने, अपने साथ सैनिटाइजर रखें और बैक टू बेसिक्स, यानी जो चीजें वो कोरोना जब शुरू हुआ था वो सब चीजें करते थे, यानी बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना, इन तमाम चीजों का ध्यान रखें। तभी हम ना सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे बल्कि हम अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी सिक्योर कर पाएंगे। जी राहुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कल शाम को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और जिसमें रिव्यू किया गया था, और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और साथ में ओमिक्रॉन के भी केसेस बढ़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने खुद बताया था कि सतर्क और सावधानी जरूरी है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई राज्यों में लोग इसका पालन नहीं कर रहे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उसका जो पालन होना चाहिए वो सख्ताई से नहीं हो रहा है, और राज्य सरकारें भी इस मामले में जिस तरह से कड़काई रखनी चाहिए या स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले रही है, उसके कारण ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने और क्या बताया इस मीटिंग में? देखिए, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने कल एक हाई लेवल मीटिंग ली थी जिसमें तमाम पदाधिकारी अलग अलग राज्यों से, स्वास्थ्य मंत्रालय से और तमाम अलग डिपार्टमेंट से जुड़े थे उस मीटिंग के अंदर। और प्रधानमंत्री ने साफ किया कि हमको जो कुछ अप्रैल और मई के महीनों में जो इस वर्ष हुआ, उस तरह की स्थिति में किसी भी कंडीशन में हमें नहीं जाना है, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको 3 टी पर ध्यान देना है। 3 टी मतलब टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग बढ़ानी होगी अलग अलग राज्यों में। अभी जितने टेस्ट होते हैं उसका नंबर जो है हमको बढ़ाना होगा ताकि एक भी कोरोना का जो मामला है वो हमसे ना छूटे। दूसरा उन्होंने कहा ट्रेसिंग, यानी जो लोग इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आए हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी है ताकि ये पता लग सके, ताकि कोरोना को और फैलने से बचाया जा सके। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रीटमेंट, यानी जिन लोगों को कोविड हो गया है या ओमिक्रॉन हो गया है उन लोगों को आइसोलेट किया जाए और उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। यानी इन 3 टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्फसाइज किया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जिन जिन राज्यों के अंदर कोविड के जो वैक्सीनेशन है उनका नंबर कम है या ऐसे राज्य हैं जहां पे कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर केंद्र सरकार अपनी टीम भेजेगी, वहां पर पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23,000 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम, एक योजना चलाई जिसमें जितने भी ऐसे राज्य हैं जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है वहां पर उसको डेवलप करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया गया, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई गई। तो साफ तौर पर आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री खुद लीड कर रहे हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है देश में, और इसी मंत्र के साथ कि देश के अंदर टेस्टिंग बढ़ाई जाए, ट्रेसिंग बढ़ाई जाए और ट्रीटमेंट में बढ़ावा दिया जाए, इस मंत्र के साथ अलग अलग अधिकारी अपने अपने राज्यों में गए हैं। और जाहिर है एक साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे उसी तरह से डेल्टा वेरिएंट खत्म हुआ, उसकी लहर खत्म हुई है, और ओमिक्रॉन की नए जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है उसकी एंट्री हो चुकी है और देश में भी काफ़ी तादाद में लोग उसके संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकारों को क्या क्या एहतियात के कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कोई निर्देश दिए है या सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं क्या? देखिए, सही पूछा आपने। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की थी 2 दिन पहले जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 25 दिसंबर और उसके बाद 31 दिसंबर यानी नए साल पर जो बड़े बड़े गैदरिंग्स होती हैं, बड़े बड़ी पार्टीज होती हैं या ऐसी जगह जहां पर भीड़ जमा होती है, ऐसे कार्यक्रमों को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। और या फिर अगर ऐसी कोई ओकेजन्स हैं जहां पर भीड़ जुटनी जरूरी है, ऐसी जगहों पर उनको रेगुलेट किया जाए, कम से कम लोगों को एक जगह इकट्ठा होने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसे इवेंट्स लगातार होने दिए जाएंगे तो ये सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं और कोरोना का जो बम है वो ऐसे इलाकों में फूट सकता है। मैं आपको एक बात और बताऊं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक और एडवाइजरी जारी की है तमाम राज्यों को कि जहां जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, जिन जिन इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं ताकि उन लोगों की मूवमेंट को रोका जाए जो कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और यह भी कहा गया है अगर आपको पाबंदियां लगानी है लोगों के मूवमेंट पर, यानी नाइट कर्फ्यू है या फिर लॉकडाउन, एक तरीके से ये वापस आने के अंदेशा दिया कि अगर आपको लोगों की रोकथाम करनी है तो जितनी पाबंदियां लगानी है आपको आप लगाएं, लेकिन
लेकिन ये इंश्योर करें कि जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जहां पर ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे जगह के लोग दूसरे इलाकों में ना जाएं और वहां जाकर एक स्प्रेडर का काम ना करें। तो साफ तौर पर काफी सारी एडवाइजरी जारी करी जा रही है हेल्थ मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कि किस तरीके से कोरोना निपटा जाए। लेकिन आखिरी जिम्मेदारी आपकी, हमारी और हमारे दर्शकों की है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट को अपनाएं, मास्क पहने, वैक्सीनेशन जाके लगवाएं और अपने जो हाथ हैं उनको बार बार धोएं और जो बैक टू बेसिक जिसको हम कहते हैं, यानी पुरानी आदतें जो कई लोगों ने छोड़ दी थी क्योंकि कोरोना के मामले कम आ रहे थे, उन आदतों को दोबारा से अपनाएं। जी राहुल, आपको शायद याद होगा कि जिस तरह से सेकंड वेव चल रही थी उस टाइम पे पश्चिम बंगाल का चुनाव विधानसभा का हो रहा था और उस टाइम पे जिस तरह से रैलियां हो रही थी और रैलियों के बाद जिस तरह से देश में, पूरे देश में कोविड के केसेस जो पॉजिटिव आना शुरू हुए थे, इसी तरह से अब आने वाले साल में मतलब 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और उसको चलते काफी राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही है और खास तौर पे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो है सभी पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सूचन किया है, डायरेक्शन दिया है कि अगर चुनावी रैलियां न हो तो काफी बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर की दस्तक बजनी शुरू हो गई है और ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, तो उसके बारे में राजनीतिक पार्टियां या चुनाव आयोग ने कुछ सोचा है क्या? देखिए, इस पे अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करेगा कि किस तरीके से चुनावों को ऐसे टाइम पर कराया जाए जब कोविड के मामले बढ़ रहे हैं या ओमिक्रॉन जैसा एक वेरिएंट सामने आ गया है। हालांकि आपने सही कहा कि पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे उस समय भी मामले बढ़ रहे थे और उस समय पर चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस इशू की थी कि किस तरीके से आपको भीड़ को रेगुलेट करना है, इंश्योर करना है कि जो लोग आपकी रैलीज में आ रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जाए, प्रॉपर जो प्रिकॉशंस हैं उनके साथ में आप कैंपेन के लिए जाएं ताकि जो कोविड है उससे बचा जा सके। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई एडवाइजरी इशू नहीं की है क्योंकि अभी चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ है। लेकिन साफ तौर पर लोग ये आशंका जता रहे हैं कि अगर कोविड की रैलीज, कोविड के दौरान रैलीज को होने दिया जाता है या बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार को होने दिया जाता है तो क्या ये एक सुपर स्प्रेडर का काम कर सकता है। जाहिर है चुनाव आयोग इन तमाम चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है और एडवाइस भी ले रहा है और आने वाले समय में इसके कॉन्टेक्स्ट में या इस राह में ज़रूर गाइडलाइंस इशू होगी। लेकिन एक बात सच है कि अगर भीड़ जमा होगी, अगर बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो ऐसे समय में कोरोना का जो खतरा है वो काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लोग भी अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लें, नेता जो हैं वो एग्जाम्पल सेट करें, वो भी प्रिकॉशंस लें और जाहिर है चुनाव आयोग की तो जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से अगर मामले बढ़ते रहते हैं और ओमिक्रॉन के जो लगातार केसेस आते रहते हैं तो किस तरीके से चुनाव कराना है, ये आखिरी फैसला चुनाव आयोग के पास ही है। बिल्कुल राहुल, अब एक ऐसी बात भी आ रही है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन का जो मिक्सचर है, मतलब कि डेल्मिक्रॉन, ये वेरिएंट नया बाहर आना शुरू हो गया है और एक्सपर्ट्स भी उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। WHO ने भी चेतावनी अभी दे दी है कि डेल्मिक्रॉन नाम का जो वेरिएंट है वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों का मिक्सचर है और उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? देखिए, लगातार रिसर्च चलती रहती है और जितने भी साइंटिस्ट हैं अलग अलग दुनिया भर के देशों में, वो लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से कोविड को पूरी तरीके से डिकोड किया जाए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसको इतना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल बनाती हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसको इतना खतरनाक बनाती हैं। आप जानते हैं कि ओमिक्रॉन के मामले में ये देखा गया है, ऐसी शुरुआती स्टडीज ऐसा बताती हैं कि ये वैक्सीन को भी सरपास कर देता है, यानी वैक्सीन का जो असर है उसको भी ये कम कर देता है। और ऐसे में अब एक नया वेरिएंट का सामने आना, जाहिर है ये चिंता की बात है। लेकिन तमाम जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्टदान हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से, पूरी तरीके से इसको डिकोड किया जाए और ताकि डिकोड करने के बाद इसका इलाज बेहतर तरीके से हो पाएगा। अभी तक हमारे पास सिर्फ टीका मौजूद है, यानी टीका जो होता है वो बीमारी होने के बाद
जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है उनको रोकता है, लेकिन इसका पुख्ता तौर पर हमारे पास कोई इलाज नहीं है, पुख्ता तौर पर इसकी कोई दवाई नहीं है। तो साफ तौर पर अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है और रिसर्च लगातार चल रही है। और ये इन तमाम जो वेरिएंट आप देख रहे हैं सामने आ रहे हैं, ये भी साइंटिस्टों की कोशिशों का ही नतीजा है, जिससे हम लोग सजग हो पाए, पहले से अलर्ट रहे और अगर कोई थर्ड वेव अगर आ रही है तो उससे हम अपने आप को बचा सकें। लेकिन एक बात सच है और पुख्ता तौर पे जो हेल्थ मिनिस्ट्री, सरकार, तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप लगातार हाथ धोते रहें, लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते रहें और टीका लगवाएं सबसे पहले, ताकि आप ना सिर्फ अपने आप को सुरक्षित करें बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी एक सुरक्षा घेरे में लें। तो साफ तौर पर जो पूरी जो मैक्सिमम मैं कहूँ अगर जिम्मेदारी किसी की बनती है तो वो हर एक इंडिविजुअल की बनती है। और जाहिर है सरकार तो अपनी कोशिशें कर ही रही है कि किसी भी तरीके से जो स्थिति हमने फर्स्ट कोविड वेव में देखी या दूसरे कोविड वेव में देखी, उस तरीके की स्थिति दोबारा से ना पनप पाए। बिल्कुल राहुल, आखिरी सवाल, जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं और साथ में कोविड-19 के भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो कई राज्यों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो वहां पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। तो दिल्ली सरकार ने अभी कोई ऐसा कोई फैसला लिया है या लेने वाली है? देखिए, ये पाबंदियां लगना ये एक पहला कदम है और जाहिर है खतरे की घंटी है लोगों के लिए कि लोग सजग रहें, अलर्ट रहें और किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना बरतें। बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए एक और लॉकडाउन के साथ पार पाना, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 बार लॉकडाउन लग चुका है और उसकी वजह से कई लोगों के जो कारोबार हैं उस पर असर पड़ा, काम धंधे पे असर पड़ा, कई लोगों ने अपनी जानें भी खोई उस दौरान पर। तो साफ तौर पर ये एक खतरे की घंटी है, ये एक शुरुआती स्टेप है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कई जगहों पर पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं और अगर लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए, अभी भी नहीं संभले, तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके की स्टडी सामने आ रही है, आने वाली स्थिति आने वाले दिनों में खराब हो सकती है। और इसीलिए जो सरकारें हैं या जो अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई कोताही ना बरतें, वैक्सीन जाकर लगवाएं। देश के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक भी टीका नहीं लगवाया है और इसी तरीके से करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला टीका तो लगवा लिया है लेकिन दूसरी टीके की जो मियाद है उसके पूरा होने के बाद भी सामने नहीं आ रहे। तो ऐसे में जिम्मेदारी है लोगों की वो सामने आए माफ कीजिएगा और वो जो अपना योगदान जो ये लड़ाई चल रही है उसमें साफ तौर पर आगे बढ़कर दें। बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत राहुल हमारे साथ जुड़ने का और सारी जानकारियां देने के लिए। मगर आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप भी फील्ड में घूम रहे हैं, लोगों को ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखिए। तो दर्शकों, तो जे रीते हमारा संवाददाता राहुल गौतमे કહ્યું કે 2 ગજ દૂરી, માસ્ક है જરૂરી, આપણા સૌની નૈતિક ફરજ છે કે આપણે પણ આનું ધ્યાન રાખીએ અને આપણી લાપરવાહી એ આપણા માટે જોખમકારક સાબિત થઈ શકે છે, આપણા પરિવાર માટે જોખમકારક સાબિત થઈ શકે છે। અને આઈટીવી નેટવર્ક પણ આપને અપીલ કરે છે કે જો તમે વેક્સિન ન લીધી હોય તો વેક્સિનેશનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, વેક્સિનના બંને ડોઝ લઈ લો અને આ જે આપત્તિ ચાલી રહી છે, આપદા ચાલી રહી છે, મહામારી ચાલી રહી છે, તેનાથી બચીએ અને આપણા પરિવારને પણ બચાવીએ અને આપણે સુરક્ષિત રહીએ।